1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 8 चैप्टर 40 वर्स से 56 वर्स तक। जोशुआ 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 40 वचन से 56 वचन तक और जोशुआ 7 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। रिबांति खबर रखा सिहांतु खबर रखो सिहांतु खबर रखो सा। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए उजियाला हो। अंधकार हम पर प्रबल नहीं हो सकता है, चाहे जितनी कोशिशें करें, लेकिन परमेश्वर आत्मा का ज्ञान जो परमेश्वर तेरी ओर से आता है वो अंधकार के जगत के ज्ञान को मूर्ख ठहराता है। ये परमेश्वर तेरा वचन आत्मा का ज्ञान है खुदा परमेश्वर, जो तेरी ओर से है, जो हम अपने अंदर समेट रहे हैं। हमारे अंदर का उजियाला परमेश्वर तेरा भय रखने के लिए है खुदा, ताकि हम परमेश्वर पाप में ना पड़े और परमेश्वर तेरे विरोध जाकर तेरे आज्ञा पालन को पिता छोड़कर हम पाप में जाकर पिता हम नाश ना हो। अब फादर गॉड, इसके लिए खुदा परमेश्वर तूने हमको ये रास्ता दिया है कि हम ये बाइबल रीडिंग को पूरा कर सकते। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी चिंता करते हो और हमारी सहायता करने के रास्ते हमको देते हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, आपके सहायता के स्पिरिट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपके स्वर्गदूत हमारे लिए फाइट कर रहे हैं और हमारा जीवन आसान कर रहे हैं आपके रास्ते चलने के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह, आपके आत्मा के द्वारा उजियाला दीजिए ताकि और ज़्यादा हम आपके आज्ञा पालन में बढ़े और ज़्यादा आपका भय मान सके और आपकी इच्छा पूरी करने में हम तेज बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Luke 8 chapter 40 verse से पढ़ेंगे। And it came to pass that when Jesus was returned, the people gladly received him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house, for he had one only daughter about 12 years of age, and she lay a dying. But as he went, the people thronged him. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." And when the woman saw that she was not healed, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. Go in peace." While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue's house, saying to him, "Thy daughter is dead, trouble not the master." But when Jesus heard it, he answered him, saying, "Fear not, believe only, and she shall be made whole." And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter and James and John, and the father and the mother of the maiden. And all wept and bewailed her. But he said, Weep not, she is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.
And her spirit came again, and she arose straightway, and he commanded to give her meat, and her parents were astonished, but he charged them that they should tell no man what was done. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। 40 वचन से आगे, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से कभी न चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्रों का आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किसी कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रोवो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि वह जो हुआ है किसी से न कहना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की वचन समझने के लिए। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए वचनों में, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।